माननीय कुलाधिपति महोदय लेफ्टिनेंट जनरल सभागार में प्रवेश कर रहे हैं। शोभा यात्रा सभागार में प्रवेश कर रही है। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी, माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय कार्य परिषद के माननीय विश्वविद्यालय ओम्बड्समैन महान भौतिक विज्ञानी शिक्षा प्रोफेसर OPS नेगी, माननीय विद्यालय कोर्ट के सदस्यगण, राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी अतिथियों से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी, माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि दीप प्रज्वलित कर विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह का शुभारंभ करने की कृपा करें। देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारणा है, देना हो या खोली का गणेशा है, देना हो या मोरी का नारणा है, देना हो या भूमि का भूम्याला है, देना हो या पंचनाम देवा है, देना हो या भूमि का भूम्याला है, बहुत बहुत देना धन्यवाद। हो या पंचनाम देवा है। विश्वविद्यालय कुलगीत की प्रस्तुति के समय हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। विश्वविद्यालय कुलगीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित हैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। गुरुकुलम ज्ञानपीठ को नित्य अभिनव विस्तार दे, जयति जयति त्रिनयन देव जय जयति जयति मां शारदे, दून गुरुकुलम ज्ञानपीठ को नित्य अभिनव विस्तार दे,
अभिनव विस्तार दे। जयति जयति त्रिनयन देव जय, जयति जयति मां शारदे। दून गुरुकुलम ज्ञान पीठ को नित्य अभिनव विस्तार दे। जयति जयति त्रिनयन देव जय, जयति जयति मां शारदे। जयति जयति मां शारदे, जयति जयति मां शारदे। सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। अतिथियों के स्वागत एवं विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने हेतु मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं। Very good morning to all of you. Respected Lieutenant General Shri Gurmeet Singh Ji, Honorable Governor, State of Uttarakhand and Chancellor Doon University, our Chief Guest, Professor Ganesh Ramakrishnan, leader of Bharat Gen AI and India AI Mission Ke Karnadhar, one of the most distinguished academician of India and one of the most influential AI personalities of the world. Respected Shri Dhan Singh Rawat Ji, Honorable Minister, Higher Education, Government of Uttarakhand, Shri Durgesh Dimri Ji, Registrar Doon University, Honorable Members of the Court, Executive Council and the Academic Council, faculty members of Doon University, medal awardees, degree awardees, PhD awardees, my dear young students, their proud parents, distinguished invitees and alumni, friends from media, ladies and gentlemen. A very good morning to you, and I welcome all of you in this Dr. Nityanand Auditorium of Doon University. I extend a very warm welcome to our Honorable Chancellor and Governor of Uttarakhand, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, who is also former Deputy Chief of Army Staff. Sir, we all at Doon University believe that it is the golden era for higher education system of Uttarakhand under your leadership. Thereafter, the higher education system is continuously witnessing the transformation without any interruption. Professor Ganesh Ramakrishnan launched Project Udan to enable translation from English to Hindi and all Indian languages of textbooks and learning materials in engineering and all main streams of higher learning on September 14th. It is a divine coincidence that it was phenomenal, and on the very next day, on 15 September 2021, Honorable Chancellor joined as Governor of the state. Every university and higher education institution describe him and recognizes him as the leader with a difference. I acknowledge your unconditional and tremendous support in every sphere of growth and improvement of the university. Under your leadership, the university has seen tremendous progress and unprecedented transformation. Sir, the name of Raj Bhavan is changed now into Lok Bhavan, and perfectly it suits your personality since you are the people's governor. Sir, under your leadership, many initiatives have been taken by Lok Bhavan Uttarakhand to improve the practices in higher education system in the state universities. These initiatives include enhanced level of transparency in appointment process of vice chancellors. Your initiative to use digital infrastructure has improved transparency and efficiency in the various processes related to the matters of the universities. You have laid down the foundation of faceless interactions without meeting while deciding and dealing with the matters related to the affiliation of the colleges in the universities of the state. Lok Bhavan has started using a separate portal to receive the applications or requests of the head of the institutions, and Honorable Governor can access such requests electronically and take the decision very quickly, avoiding unnecessary delays. Sir, it is also unprecedented that you have an extraordinary understanding of the significance of research in higher education institution. You have a clear vision that the basic as well as applied research must be carried out in the universities. It is your foresightedness that you have laid down the foundation of reorienting of the research activities towards IP generation in Doon University
by institutionalizing the collaboration as an association of the university with National Research Development Corporation of Government of India. You allowed our university to sign memorandum of agreement with NRDC in your gracious presence exactly 5 months ago on 28 July 2025. It is only one example. Your efforts and initiatives are multiple. You always indicate in the meetings that the universities are meant not only for teaching, but also for the research. In 2023, you took a very important initiative, that is One University, One Research, to ensure the involvement of every university in conducting research in at least one field which is relevant in context of the issues of the state of Uttarakhand. Under your leadership, Lok Bhavan is very much active in identifying the issues of state relevance in consultation with the state government and state university. Just a month ago, a book entitled Mountains of Labor, Current of Change has been authored and published under your One University, One Research initiative. A copy of this book has also been presented to Honorable President of India, who has highly appreciated it and also your role. You also gained an understanding of the crucial role of the professors of practice and directed me to initiate this. I have witnessed that you invited Dr. Thomas Schaub and met him personally and took the cognizance to his crucial role and responsibility in the university as professor of practice. Similarly, on the day before yesterday, you invited our chief guest, Professor Ganesh Ramakrishnan, to Lok Bhavan in person and gathered the detailed information about BharatGen and Sovereign AI initiative of India under the able leadership of our Honorable Prime Minister. Sir, I witnessed this meeting and you were learning lot of things like a student, and you were just appreciating Professor Ganesh Ramakrishnan as a teacher, as a professor. That is your gratitude. Just 2 days ago, Honorable Chancellor has directed me to recognize the students who have a potential to become leader and expert in the field of artificial intelligence and encourage them with Chancellor's Award and cash prize. This initiative has been implemented by the university in this convocation only. In addition to this, on the direction of our Honorable Chancellor only, the university has initiated recognizing the relatively young but apparently distinguished alumni on the basis of their remarkable performance, achievements, or contributions in their respective field. This year, the university received many nominations from alumni. Out of them, 5 alumni have been identified as the distinguished alumni of the university. I also welcome our chief guest, Professor Ganesh Ramakrishnan, who accepted our invitation despite the fact that his schedule is extremely busy and the weather is very cold in Dehradun. And a very special thing I would like to share this August gathering, that he sleeps not more than 3 hours a day. He's in a mission mode to generate AI for India. He has come from Mumbai, where the weather is very pleasant in the present scenario, that is the era of artificial intelligence. He does not need any introduction. He's a professor of computer science and engineering at IIT Mumbai and known and recognized as the Karnadhar of India AI mission, launched by Government of India under the leadership of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He is leading BharatGen AI, the first sovereign AI initiative of India, funded by the Ministry of Electronics and Information Technology of India through the India AI mission, as well as by the Department of Science and Technology through the NMICPS program. A huge fund of 988 crore has been approved for BharatGen by the Government of India. He is among top 100 influential leaders of artificial intelligence in the world. He completed his BTech and PhD, both from IIT Mumbai. He is working day and night on developing large language models and generative AI for India, human-assisted AI-ML, use of AI-ML in resource-constrained environments, learning with symbolic encoding of domain knowledge in ML and NLP, etc. His potential and capabilities are well known and recognized in top industries such as IBM Research, Adobe, and Google. In recognition of his leadership in the field of AI, he was recently honored with the recognition as one of the top
30 Indian fine minds leading the AI revolution by Excel and Forbes India. He has received the prestigious National Gold Award for E-Governance Gold Award, Dr. P.K. Patwardhan Award. The list is very long. Our Honorable Minister has supported Doon University in every sphere, be it academics or research, through Chief Minister encouragement scheme of research. And in every sphere, whenever we require his help, he is always there. Thank you so much, Honorable Minister, and I welcome you. Respected Chancellor, sir, have realized the significance of symbolic actions also. We organize theme-based convocations. Hence, in 2022, University symbolized women empowerment as its convocation theme. This theme of women empowerment was also appreciated and promoted by the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji. The next convocation, that is 2023 Vasudhaiv Kutumbakam, when India got its leadership for G20, One Earth, One Family, One Future, was the convocation theme of Doon University. Last year, that is 2024, we promoted Mati, that is the soil, through our symbolic action in our convocation. And in 2025, we are promoting artificial intelligence through our symbolic actions. Our printing and publishing team has done a wonderful job in highlighting this theme on the printed material for convocation. And the theme is AI by Bharat, not AI for Bharat, coding the heights beyond the clouds. And Chancellor sir, now I present some highlights quickly what we have done for the last year in the field of academic collaboration, human resource generation, academics, infrastructure development, and some new initiatives. I find it relevant to apprise you for the major milestone achieved by the university in the preceding academic year, that is 2024-25. This year has been full of excitements and uncertainties. The university went through assessment and accreditation by National Council and has been successfully in receiving grade A, and our score improved from 2.77 to 3.10 in 2024. Recently, to our surprise, Doon University has been listed at rank number 312 QS World Ranking Southern Asia 2026. It is worth mentioning that Doon University at third rank in this list for citation per paper criteria with a score of 97.7. Doon University has become the spoke institution of IIT Madras through a very special program of Anusandhan National Research Foundation led by our Honorable Prime Minister, and this foundation is entitled Partnership for Accelerated Innovation and Research. Our faculty members and students are visiting IIT Madras, staying there, completing their dissertation in IIT Madras for a short duration as well as long duration, and getting benefited. Doon University has started implementing exchange program under its international collaboration initiative. Recently, Professor Ronan Le Lagdec, National Autonomous University of Mexico, the largest university of Latin America, visited Doon University for 1 month. Doon University has established Dr. Ambedkar Chair, Honorable Minister, inaugurated it with the then governor, and I would like to share that now it is fully functional and started working in the area of socio-economic upliftment of SC, ST, and women of Uttarakhand. University has established Center for Hindu Studies in accordance with the suggestion of Government of Uttarakhand and the approval of the Cabinet. University has established Global South Center for Urban Studies. This center has launched a course MSc in Urban Development Management. The first batch will pass out in this ongoing session. The entire examination and evaluation system has been revamped by introducing in-house built software for implementation of NEP 2020, central evaluation and examination system. The entire training and placement system of the university has been revamped. Now it is professionally run cell. Drastic improvements are clearly visible. As a result, the preceding academic year 24-25 has been remarkable from the point of view of the placement of the students in a very, very renowned
companies like Accenture. This is one example. All of us know that academic activities in the university include both teaching and research, and university is doing excellent. The university has completed 2 years of implementation of PERS program in November 2025. The university has inaugurated PERS lab in October 2025. Lot of things, nearly 20 crores research projects are going on in the university, funded by central government and state government. I acknowledge and appreciate our brilliant faculty members who are undertaking these research projects efficiently and effectively. Doon University, with the help of state government, with the blessings of Honorable Minister, seen significant progress in context of infrastructure development. During last 2 years, university library building is at the stage of the completion of the construction. Separate building which will be used as examination center is under construction. One very important thing which I would like to share, and then I will conclude, that Doon University is extending its full support to government in training the youth for employment. At present, the School of Foreign Languages is providing training to the nursing students of 13 nursing government colleges of Uttarakhand in Japanese, English, and German languages for overseas employment. Our students are teaching our nursing students. This flagship program is in collaboration with Ministry of Skill Development, Government of Uttarakhand. Lot of things are there, but I conclude and I would like to share with the gold medal awardees and all the degree awardees that I believe that this day is providing a sense of immense satisfaction to your parents and guardians who sacrificed immensely to ensure that you see this day and you become successful. Success must be celebrated on this day. You must understand that this success is just the beginning of the lifelong learning process. Don't be hesitant in asking questions. As once Albert Einstein said, I have no special talent. I am only patiently curious. And lastly, I take this opportunity once again to thank our Honorable Chancellor, Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, Honorable Minister, Dr. Dhan Singh Rawat Ji, our Chief Guest, Professor Ganesh Ramakrishnan Ji, our court members, Honorable Members of Academic Council, our ombudsperson, all the friends from media, Academic Council members, our faculty members, students, and all the invited guests. Thank you so much once again. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह के विधिवत शुभारंभ की घोषणा हेतु निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करने हेतु निवेदन करती हूँ। मैं दून विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह के शुभ आरंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि विश्वविद्यालय वर्ष 2024 के स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी उपाधिकर्ताओं को जिनकी मौखिक परीक्षा 20 दिसंबर 2025 तक संपन्न हो चुकी है, उनको दीक्षा उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हर खंड के अंत में हम प्रतिज्ञा करते हैं कहकर दोहराएंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षा उपदेश प्रदान करती हूँ। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, आचार्य के प्रति कर्तव्य पूरा करो, कल्याणकारी कार्यों में प्रमाद मत करो, ज्ञान के प्रसार और स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, देवों और पितरों के प्रति कर्तव्यों का पालन करो। माता और पिता को देवता के समान समझो,
आचार्य को देवता के समान समझो, अतिथि को देवता के समान समझो, जो अनिंदित कर्म हैं केवल उन्हीं को करो, हमारे जो अच्छे आचरण हैं उन्हीं को ग्रहण करो, औरों को नहीं। जो अपने से श्रेष्ठ विद्वान हैं उनको आसन देकर सम्मानित करो। श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं। विनीत बनकर, कर्तव्य समझकर और सहानुभूतिपूर्वक दान देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म अथवा आचरण के विषय में संदेह हो तो जो विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी व्यक्ति हैं उनके आचरण को आदेश मानकर कार्य करो। जिन पर दोषारोपण होता है उनके साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा विवेकशील, कर्मरत, सहृदय और धर्मानुरागी व्यक्ति करते हैं। यह आदेश है, यही उपदेश है, यही धर्म ग्रंथों का रहस्य है, यह अनुशासन है। इसका इसी रीति से पालन करो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। सभी उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मैं कुल सचिव को विभिन्न उपाधियां प्राप्त करने वाले दीक्षार्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देती हूं। सभी उपाधि अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्रीमान, मैं आपके समक्ष स्कूल ऑफ डिजाइन, स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेज, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एवं डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध एवं अध्ययन केंद्र के वर्ष 2024 के 484 स्नातक, 241 स्नातकोत्तर एवं 14 पीएचडी के दीक्षार्थियों को जिनकी परीक्षा ले ली गई है और जो योग्य प्रमाणित हो चुके हैं, जो उपस्थित हैं, उन्हें उनकी उपाधियों के लिए प्रस्तुत करता हूं एवं मेरी प्रार्थना है जो अनुपस्थित हैं उन्हें भी उक्त उपाधियां प्रदान की जाएं। मैं दून विश्वविद्यालय के कुलपति के निहित अधिकार से सभी प्रस्तुत उपस्थित एवं अनुपस्थित दीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियां प्रदान करती हूं और आदेश देती हूं कि आप आजीवन इस उपाधि के योग्य प्रमाणित हों। समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि विश्वविद्यालय सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान करने की कृपा करें। कुल सचिव स्वर्ण पदक विजेताओं को प्रस्तुत करेंगे। परीक्षी नेगी, MA इंग्लिश। मानवी गोयल, निधि नेगी, हर्षिता अग्रवाल, चारवी शर्मा, तान्या त्यागी, अंजलि नौटियाल, आयुषी थपलियाल, ज्योत्सना नौटियाल, दीपक कर्नाटक, अनामिका गर्ग, अमीषा पंवार, शिवानी रावत। परीक्षी नेगी, MA इंग्लिश। जोर से ताली बजाइए। मानवी गोयल, MA जर्मन।
निधि नेगी, MA इंटीग्रेटेड चाइनीज। हर्षिता अग्रवाल, MA इंटीग्रेटेड फ्रेंच। चारवी शर्मा, MA इंटीग्रेटेड जर्मन। तान्या त्यागी, MA इंटीग्रेटेड स्पेनिश। अंजलि नौटियाल, MA इंटीग्रेटेड जापानीज। आयुषी थपलियाल, MA इंटीग्रेटेड स्पेनिश। ज्योत्सना नौटियाल, BA इंग्लिश ऑनर्स। दीपक कर्नाटक, एग्जीक्यूटिव MBA। जोर से ताली बजाइए। अनामिका गर्ग, MBA। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ है घर आपका? बहुत मुबारक है। Keep doing it. अमीषा पवार, इंटीग्रेटेड MBA। And keep doing excellent. शिवानी रावत, BCom ऑनर्स। बहुत मुबारक हो आपको। पिताजी क्या करते हैं? हाँ? All the best. हिमांशी केंतुरा, MA मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। अच्छा, मीडिया में आपने किया है? बहुत बहुत मुबारक। घर से कोई आया है? कहाँ? हाँ? हाँ? वो फोटो ले रहे हैं। बहुत मुबारक हो आपको। विधि जोशी, इंटीग्रेटेड MA मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। And keep doing excellent. घर से कोई आया है आज? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ बैठे? कहाँ? हाँ? वो जो फोटो ले रहे हैं? उधर में? प्रिया चौधरी, MSW। बहुत मुबारक हो आपको। Keep doing excellent. नजरुल्ला सिद्दीकी, MA इकोनॉमिक्स। कितनी हाइट है आपकी? हाँ? कहाँ है? हाँ? बहुत बहुत मुबारक। कोई आया घर से? ज्योति विष्ट, MA साइकोलॉजी। बहुत मुबारक हो आपको। No, no, it's such a pleasure for us. घर से कोई आया है? बुलाना था ना। लीसा जोशी, MSc इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स। All the best to you, बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। घर कहाँ है आपका?
दीपिका वर्मा, MSc इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स। बहुत मुबारक हो आपको। आगे भी क्या प्लान है? हाँ, what subject? शिविका बुड़ाकोटी, BA साइकोलॉजी। And keep doing excellent. All the best. आइए, शिविका बुड़ाकोटी, BA साइकोलॉजी। मुबारक हो आपको। कहाँ है घर आपका? हाँ, स्वाति नेगी, MSc एनवायरमेंटल साइंस। बहुत मुबारक हो आपको। And keep doing excellent. लक्षिता पंत, MSc एनवायरमेंटल साइंस, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत मुबारक हो आपको। आइए। कोई घर से आया आज? हाँ? सात्विका गुप्ता, बैचलर ऑफ डिजाइन। Keep doing excellent. सात्विका गुप्ता। मुबारक हो आपको। And keep doing excellent. इस मैटर को दिखाइए आप। आंचल, MSc फिजिक्स। बहुत मुबारक हो आपको। अनामिका देवरानी, MSc इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री। बहुत मुबारक हो आपको। क्या है घर आपका? हाँ? हाँ। सामने। अस्मित रावत, MSc इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स। देवराज सिंह, अस्मित रावत, MSc इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मेडल दिखाइए। देवराज सिंह, MSc इंटीग्रेटेड फिजिक्स। आइए। बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ है घर आपका? हाँ? अनुभि सैमुअल, MSc इंटीग्रेटेड केमिस्ट्री। बहुत मुबारक हो आपको। ऑल द बेस्ट। काजोल, MSc इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स। काजोल, MSc इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स। बहुत मुबारक हो आपको। कोई घर से आया आज? कहाँ है? प्रियांशी भंडारी, कहाँ पर? MSc इंटीग्रेटेड फिजिक्स। बहुत मुबारक हो, पूरे परिवार को मुबारक। प्रियांशी भंडारी, MSc इंटीग्रेटेड फिजिक्स। बहुत मुबारक हो आपको। सही क्या करते हैं? हाँ? हाँ? ओह, डॉक्टर नित्यानंद हिमालय रिसर्च एंड स्टडी सेंटर से प्लव्या प्रीतिदास, MA ज्योग्राफी। आइए। बहुत सुंदर टॉपिक चूज किया आपने। ऑल द बेस्ट। अवंतिका नौटियाल, MSc जियोलॉजी। बहुत मुबारक। बहुत मुबारक हो आपको। नहीं, सच्चे प्रेशर। कहाँ घर है आपका? अच्छा, बहुत बहुत। एमी सजवान, बायोलॉजिकल साइंस, MSc इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल साइंस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एमी सजवान, MSc इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल साइंस। गौरव कोठारी, MSc कंप्यूटर साइंस। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कहाँ है घर आपका? हाँ? कमल रावल, MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आइए।
बहुत मुबारक हो। कहाँ घर है? हाँ? पीछे पकड़ना। बहुत मुबारक हो। ऑल द बेस्ट। विश्वविद्यालय की स्थापना काल से लेकर के अब तक हमारे पुरातन छात्रों ने देश और समाज में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी क्रम में एलुमनाई सेल के द्वारा 5 पुरातन छात्रों को डिस्टिंग्विश एलुमनी अवार्ड सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड में नीतीश भारद्वाज, अक्षय वर्मा, चारू नेगी, अरुण ठाकुर, नैन्सी थपलियाल। नीतीश भारद्वाज ने वर्ष 2016 में स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज से एमए डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन में प्राप्त की। आप सामाजिक रूप से प्रभावशाली आदिवासी जनजागृति संस्था के संस्थापक निदेशक हैं। नीतीश भारद्वाज लगातार आदिवासी समाज के साथ मिलकर गवर्नेंस, सामाजिक न्याय, युवा नेतृत्व आदि विषयों पर कार्य कर रहे हैं। कम्युनिटी सहभागिता के माध्यम से आपने आदिवासी क्षेत्रों के नागरिकों के जीवन में प्रभावशाली परिवर्तन लाने का कार्य किया है, जिससे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। और इसके लिए आपको एक्यूमेन इंडिया फेलोशिप, यंग अचीवर्स अवार्ड, अमेजिंग इंडिया अवार्ड, आगामी अवार्ड आदि प्रदान किए गए हैं। अपने उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए दून विश्वविद्यालय आपको डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। अरुण ठाकुर रंगमंच, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो के एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित कलाकार हैं। आपको अभिनव, निर्देशन, रिपोर्टरी, थिएटर के क्षेत्र में लगभग 5 दशकों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। 1975 से लगातार रंगमंच से सक्रिय रूप से जुड़े रहे। रेडियो, दूरदर्शन अनुमोदित कलाकार के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाई है। आपने गन्स और गुलाब्स, इश्क विस्क, रिबाउंड, आखिरी पलायन, अनेक फिल्मों के साथ और लघु फिल्में, वेब सीरीज में, विज्ञापनों में कार्य किया है। अरुण ठाकुर ने दून विश्वविद्यालय से 2022 में एमए थिएटर की स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। उनकी विशेषता थिएटर फिल्म परफॉर्मेंस में है। रंगमंच के क्षेत्र में आपके अद्वितीय योगदान के लिए दून विश्वविद्यालय आपको डिस्टिंग्विश एलुमनाई अवार्ड प्रदान करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। नैन्सी थपलियाल वर्तमान में यूपीएससी के माध्यम से कमीशन्ड हैं, भारतीय सेना में कार्य कर रही हैं। नैन्सी कारगिल क्षेत्र में डिप्यूट होने के कारण आज उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनके माता पिता हमारे बीच में उपस्थित हैं। नैन्सी ने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स में 2021 में उत्तीर्ण की और आप देश सेवा का, देश की जो संकल्प आपने लिया है, इसके लिए दून विश्वविद्यालय आपको डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। दून विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गजेंद्र सिंह के द्वारा पोषित 2 विद्यार्थियों को गजेंद्र सिंह ऑल राउंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से अलंकृत किए जाना है। डॉक्टर गजेंद्र सिंह ऑल राउंड स्टूडेंट अवार्ड की धनराशि 15,000 रुपये है। इस क्रम में मिस जया शर्मा, बीएससी केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज। डिजिटल इंडिया के दौर में ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वित्त अधिकारी महोदय के द्वारा माननीय कुलपति महोदय के निर्देश पर मिस जया शर्मा, बीएससी केमिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल साइंसेज। मिस्टर स्वास्तिक गोंधी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत अपराह्न ये इंग्लिश के छात्र अग्रांशु ग्रोवर जब घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में 2 लुटेरे एक वरिष्ठ नागरिक का कीमती बैग छीन करके भाग रहे थे। उनको मोटरसाइकिल से भागते हुए देख करके अग्रांशु ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपना स्कूटर की स्पीड बढ़ाई और उनकी मोटरसाइकिल के आगे खड़ा करके उनके टायर पर अड़ा दिया, जिससे उनका बैलेंस बिगड़ गया। अग्रांशु ग्रोवर ने उनके बैलेंस बिगड़ते ही जैसे वो गिरे तो एक लुटेरे को जिसके हाथ में बैग था उसको दबोचा और इस प्रकार से उस वरिष्ठ नागरिक का कीमती सामान भरा बैग उनको हैंड ओवर किया। इस बीच वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भी बुला लिया गया और उस लुटेरे को पकड़ करके पुलिस अपने साथ ले गई। इस घटना को सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। राह चलते वरिष्ठ नागरिक के अमानती सामान को लुटेरों से बचाकर
अपनी जोखिम भरा और साहसिक कार्य के लिए आपने उत्कृष्ट नागरिक कर्तव्यों का प्रदर्शन किया। ग्रांसु ग्रोवर के इस साहसिक कार्य के लिए दून विश्वविद्यालय उन्हें नागरिक कर्तव्य सम्मान रुपया 5,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र से अलंकृत करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। आपका यह कृत्य निश्चित रूप से विद्यार्थियों में नागरिकों के प्रति उनके कर्तव्यों का बोध कराएगा। ग्रांसु ग्रोवर। माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देश पर और विश्वविद्यालय की थीम कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होने के कारण इस वर्ष 2 विद्यार्थियों को चांसलर्स फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीडर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। अंशी कोठारी दून विश्वविद्यालय की बीटेक कंप्यूटर साइंस की 33 वर्ष की छात्रा है, जिन्होंने 9.7 CGA के साथ एक्सप्लेनेबल AI एडवर्सियल मशीन लर्निंग पर शोध कार्य प्रकाशित किया है। उन्होंने IIT रुड़की से AI में शोध इंटर्नशिप पूर्ण की और दोनों विश्वविद्यालयों ने AI के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए चांसलर्स फ्यूचर AI लीडर अवार्ड से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। डॉक्टर शिवांकुर थपलियाल, आपने PhD उपाधि कंप्यूटर साइंस में प्राप्त की। दोनों विश्वविद्यालय के PhD कंप्यूटर साइंस के शोधार्थी हैं, जिनका शोध प्रकृति प्रेरित एवं क्वांटम हाइब्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुकूलन तकनीकों पर केंद्रित है। उन्होंने चिकित्सा, इमेजिंग, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स में उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। दोनों विश्वविद्यालय उन्हें चांसलर्स फ्यूचर AI लीडर अवार्ड से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी, माननीय कुलपति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएंगे। PhD उपाधि धारकों की समूह फोटोग्राफी के लिए शोभा भट्ट, कदम अभिजीत दादा साहेब, राहुल बोध स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, सत्येंद्र सिंह चौहान स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, शिवांकुर थपलियाल कंप्यूटर साइंस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, सुखविंदर सिंह रावत डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, रॉकी खजूरिया, सुरुचि मेंडोला, दामिनी सिंह, निधि विष्ट, अमृता डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जॉली कौशल स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, तानिया नारंग स्पेनिश में और सबीर शाह इंग्लिश में। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवांकुर। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस दीक्षांत समारोह में हम सबको संबोधित करने के लिए, जैसा कि माननीय कुलपति महोदय ने अपने संबोधन में आपका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया, ऐसे महान विज्ञानी, भारत जैन के अग्रणी लीडर और टॉप 10 इन्फ्लुएंसर्स में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ टेक्नोक्रेट IIT मुंबई के आचार्य प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी को मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। Governor of the state of Uttarakhand, Dr. Dhan Singh Rawat ji, the Honorable Minister of Higher Education, Professor Sureka Dhangwal ji, the Honorable Vice Chancellor of Doon University, esteemed members of the Executive Council, Academic Council and the Court of Doon University, faculty members, the very, very proud parents, and most importantly, the graduating students of Doon University. It's my great pleasure to be here amongst all of you at this momentous occasion. I would like to share with you all that I've been very eager and excited to be here because of several reasons. The first and very important one is that Uttarakhand is Devabhumi, land of the gods. And this is due to numerous Hindu temples,
pilgrimage centers found throughout the state. It has the Kedarnath temple built in the 8th century AD by Jagadguru Adi Shankaracharya, Badrinath, Gangotri and Yamunotri. I was very fortunate several years back when I was mentoring at IIT Mandi. I came all the way to Uttarakhand just to continue the experience of Devbhoomi from Himachal Pradesh to Uttarakhand. I've seen, and several of us have witnessed our Honorable Prime Minister at the Kedarnath Dham, deeply absorbed in meditation, setting an example of sadhana, ripening inside out that all of us need to follow. Which mango is better? A mango that ripens outside in or inside out? You all know better, right? So he sets this beautiful example. In my couple of interactions with the Honorable Prime Minister, I've also seen such a wonderful listener. Again, a characteristic of one who's blossoming inside out. The second reason was that I was really inspired by our leader, veteran leader of Indian Army, none other than Honorable Governor Lieutenant General Gurmeet Singh Ji, who is the constitutional head of Uttarakhand, a Himalayan state that shares its border with Nepal and China. Again, he is an amazing listener. So, day before yesterday, as our Honorable Vice Chancellor Madam explained, he was engrossed in listening, setting a great example of what a student should be. In fact, in Sanskrit, we have actually the same root for both learning and teaching, Adhyayan, Adhyapan. Unlike English, where learning and teaching are very different, here Adhyayan, Adhyapan are very closely connected because you are a lifelong student. And thank you, sir, for setting such a wonderful example, teaching us by your example. The third reason is that Professor Sureka Dangwal, who's leading Doon University and is actually well known at the national level for amazing contributions. For example, drafting the Uniform Civil Code, which has been implemented so far only in Uttarakhand. Again, my heartiest congratulations to the Uttarakhand government and to our Vice Chancellor Madam for helping instrument this so wonderfully. Her leadership and vision have created an environment that encourages exploration, creativity and excellence. And a testimony to that is the myriad of awards and recognitions that we saw throughout today's convocation. Because of our leadership, Doon University is also associated formally with IIT Madras through the PAIR program of ANRF. Very proud to hear about this. We have also been very impressed with Dehradun, which is known because of the presence of very high quality education imparting schools. I've myself interacted with so many wonderful secretaries, including the director at India Mission currently, all of whom have either studied at Doon School or benefited from the programs at Mussoorie. The last but not the least was that I wanted to connect with all of you and speak to all of you who are graduating today. Again, a round of applause for all of those who have graduated today with flying colors. My dear graduating students, this is a moment of triumph, a culmination of your hard work, dedication and perseverance. As you embark on this new chapter, remember that the world awaits you with opportunities and challenges. Now you will enter the real world. And yes, there are challenges because of artificial intelligence, but there are also opportunities. Question is, किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, right? Whether you see it as a challenge, as an obstacle, or as an opportunity. If you stay true to your swabhava, your swadharma, it's actually opportunity. With this context, I would like to draw your attention to the opportunities and transformations with all of us participating in it, how we could witness Bharat through the lens of transformation that AI has the potential for. BharatGen stands as an example of not only commitment from the ground level up of amazing scientists, professors across 9 academic institutions, dedicated engineers, but also the leadership at the top from the Department of Science and Technology and the Ministry of IT, the Prime Minister's office, the entire government backing it.
as Professor Dangwal mentioned, Bharatjan has been a recipient of rupees 988 crores under the India AI mission from the government of India. So during the next 10 to 15 minutes, I'll focus on the imperative of sovereign AI for securing India's future through the Bharatjan ecosystem. Some of you might not know, but DeepSeek, which made in China famous in the AI space specifically, had its seeds sown 15 years back. So ecosystem creation takes time, takes perseverance, and takes foresight. As an example, at Bharatjan, we have our CEO, Mr. Rishi Bal. He spent 25 years in the US. He was at Carnegie Mellon University, at Google Research and Microsoft, and came back, right? Example of what we call homecoming. Our Vice President, Dr. Manish Singh, was an IIT Delhi graduate, spent more than 3 decades in the US at top universities, was at UIUC during his PhD, and is back as our Vice President, Machine Learning. My humble journey, I did my bachelor's at IIT Bombay, Department of CSE, and while all my batchmates went to the US largely for studies or job, I was also eagerly awaiting a career through a PhD at the Carnegie Mellon University, Pittsburgh. And actually, that's when I met 2 very important people in my life. Two important people inspired me to make a transformation. And one was a professor at IIT Bombay who, through a course, kept asking, what is Indian about Indian Institute of Technology? Sir, nobody asks such hard questions to us, right? BTech को कोई पूछता नहीं ऐसे प्रश्न. What is Indian about it? Is it just in India or for India? A second person was my spiritual guru, and I told him I plan to go and study and come back. And he told me, everyone says like that. सब बोलते आएंगे वापस. That really made me change my decision. I decided to pursue my PhD at IIT Bombay. In fact, after my PhD for a postdoc, I was to go to the Bay Area, the US, and I again went to my spiritual guru and expressed to him. And he said, what are the options you have? I said, well, one option is in the Bay Area. The other option is in Delhi at IBM Research. He turned to me, smiled, and said, I would suggest you go to Delhi. It is close to Vrindavan. California is too far from Vrindavan. That's a frame of reference. दृष्टिकोण, मैं बता रहा था ना, दृष्टिकोण से फर्क पड़ता है. हमें लगता है कहाँ वृंदावन है, कहाँ बे एरिया है. But when your entire career, your perseverance is anchored on Swabhiman, what it has to offer to the world, what it has to offer through compassion, not through a mood of exploitation, you can actually be a solid change maker in that process. So the pursuit of artificial intelligence, starting with the team that I talked about, is fundamentally linked to the pursuit of national sovereignty. We must begin by understanding that sovereignty is not just from a political sense. Chanakya, in the Kautilya Arthashastra, he talks about sovereignty as focus on the welfare and happiness of the populace in a functional sense. And as Madam rightfully pointed out, it is AI by Bharat, right? That is sovereignty. And that brings me to the functional sovereignty aspect, which is the crucial capacity to translate strategic national intent, which is the what and the why, into effective operationalization, the how you do it. Achieving this independence requires mastery over 4 key components, which are technological supply, which is about controlling the hardware and the software; economic independence, which is funding the domestic AI; infrastructural independence, which is controlling the computation and data. The data and computation eventually needs to be homegrown, and data needs to reside in India. And the fourth is cultivating indigenous knowledge systems and expertise. Sovereign language models, therefore, can help create this virtuous cycle of these 4 components. And they are central to this mandate, offering the path to achieving strategic autonomy and accelerating national innovation while ensuring that AI systems remain sensitive to India's national laws and policies. One of the very critical areas in functional sovereignty is defense and strategic autonomy.
To gain a decisive strategic advantage in this complex environment, India must develop its own sovereign LLMs. I encourage you to watch my talk at Swavalamban 2025, which is India's flagship defense conclave, a month back. From my discussions with the NSA Shri Ajit Doval ji, the CDS General Anil Chauhan ji, and the CNS Admiral Dinesh K. Tripathi ji, effective defense applications are impossible without deep, collaborative co-design involving academia, industry, and defense stakeholders to seamlessly integrate the necessary domain-specific knowledge. This co-design approach is vital in advanced systems like coordinated drone swarms, where successful execution of very complex missions such as chasing a dynamic target necessitates co-designing communication algorithms with the model's interpolation and mapping functions, for example, SLAM. And the AI-driven cyber defense LLMs offer this big picture required for robust protection by translating natural language queries into executable queries across diverse databases. India has already demonstrated success in this area, including our work on development and deployment of award-winning intelligent camera systems in collaboration with several naval dockyards in the past. This path forward requires establishing a unified defense industry academia ecosystem, and that's why Bharatjet is set up as a Section 8 company, a not-for-profit company, to ease collaboration with academia as well as industry. Co-developing is extremely important by design. Now, in terms of the path, the core mechanism for realizing this vision, initiated at IIT Bombay, the first seed funding came from the Department of Science and Technology of 235 crores, which is very important to acknowledge because the science and technology seed underpinning Bharatjet is what made it come so far. Now we have 1,000+ crore funding from the India mission for spearheading culturally sensitive AI research to help meet India's strategic goals by 2047. I talked about a team that we have built. We have 50+ engineers from top companies, Amazon, Samsung Research, and so on. But we also developed the capability to train on thousands of GPUs and now touching 8,000 GPUs. We helped boost the ecosystem by working with India data centers, work with Indian vendors for data as well. So it's really about bolstering the entire ecosystem around you and not just running a silo. The 4 pillars that are very critical to make such an ecosystem survive and thrive are: 1, the view of large language models as glass boxes and not black boxes, because that's when you exercise control. That's when you can actually tune them for your advantage. That is AI by the society. The second aspect which helps look into the future is research. Right? Research based on the glass box view, based on the recipes you have, because this research can help bring better human-machine collaboration. From there on, you go to the fourth aspect, the 4th pillar, which is data sovereignty. Diversity as a strength rather than a source of confusion. In fact, it's very important to highlight that while we have diversity of languages in India, they all enjoy a very important integral unity. All of you have heard of mixture of experts. A mixture of experts, which DeepSeek made famous, actually this multiple thoughts, multiple divergent, I would say, perspectives, at the same time, their convergence in the fact that they are rooted in Bharat. Languages having diverse vocabulary, but integral unity in their structure. This is our strength. Our diversity can be our source of defense. At the same time, recognizing that integral unity can be a source of resilience. Based on this, we have been actually building out several applications, whether it's Krishi Sati for analyzing crops, for helping create co-pilots for farmers, integrating text, speech, and document vision modalities, or whether it's about ensuring that we have water governance for better management by translating complex citizen queries about water access, searching for government APIs and reports, and generating data-driven intelligence, or going further, as I said, making sure that the large language models are fundamentally built on the integral unity of Indian languages. For example, inspired by Panini's Ashtadhyayi, we employ a method of understanding or morphologically grounding the tokenization of Indian languages
leveraging their unified suffix representation and also leveraging the fact that Indian languages do enjoy the same word order. When we say Ram aam khate hain, right, it is a subject, object, verb. All Indian languages operate on the similar structure. But moment you go to English, Ram eats mangoes. It becomes subject, verb, object. Right? So this difference is very important for us to also acknowledge so that we can leverage our integral unity. Last but not the least, we stand at the cusp of a dramatic paradigm shift from artificial intelligence to artificial general intelligence, because these systems possess the potential to seamlessly fuse dynamic data, streams from sources like drones, LIDAR, and so on, and create cross-pollination across vastly different scientific domains. They can accelerate discoveries, solving problems in hours which could otherwise take months or even decades, and synthesizing completely new materials. We must remain sensitized to the fact that AI, however, is a double-edged sword. It carries the potential to either erode national sovereignty or fully restore it. It's not about we using AI products. We may become the AI products ourselves. That's why this double-edged sword is important to acknowledge. The immense power of AGI necessitates stringent human-in-the-loop diligence. Control must be exercised not to stifle innovation, but to carefully guide it. Ultimately, sovereignty is fundamentally about agency. The goal for India is to develop AI to dramatically expand the horizon of possibilities and reclaim agency at every level, economic, political, and epistemic, ensuring that this powerful technology is built upon indigenous values and ethos. To fully realize the vision of 2047, we must embrace a whole-of-nation approach, requiring sustained, deep investment in research and robust lateral collaboration across government bodies, academia, and industry. And that's the seed that was sown with BharatGen. Again, I'm very honored to be with all of you. Let's work together. Let's cut boundaries. Let's work as a whole of nation to realize the 2047 vision. Thank you very much. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी। बहुत ही सरल शब्दों में आपने हम सबका मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत आभार। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि विश्वविद्यालय सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी द्वारा संपादित पुस्तक संवर्धन अ रोड मैप फॉर डेवलपमेंट ऑफ उत्तराखंड 2025 का विमोचन करने की कृपा करें। इसके संपादक डॉक्टर अविनाश चंद्र जोशी, माननीय कुलपति महोदया डॉक्टर गजाला खान मंच पर आमंत्रित हैं। जोशी जी कहाँ हैं? डॉक्टर सुधीर नौटियाल और प्रोफेसर पोखरियाल। संवर्धन उत्तराखंड के विकास का रोड मैप विजन 2025 का संपादन विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश चंद्र जोशी जी और डॉक्टर गजाला खान जी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में उत्तराखंड राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मुख्य विषयों पर यह केंद्रित है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल, पर्यावरण, पावर, टूरिज्म, इंडस्ट्री डेवलपमेंट। और इसमें जो शोध पत्र हैं उसमें सुधीर नौटियाल, संजीव चोपड़ा, शैलेश उप्रेती, अनिल बहुगुणा, कुसुम अरुणाचलम, एकलव्य शर्मा, AP डिमरी, पोखरियाल जी, कलाचंद सेन, प्रोफेसर ममगाई, प्रोफेसर पुरोहित जैसे लोग शामिल हैं। खड़े हो जाओ नौटियाल जी। नौटियाल जी इधर गजाला जोरदार तालियों के साथ इस महत्वपूर्ण पुस्तक रोड मैप है, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी द्वारा संपादित पुस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह को संबोधित करने हेतु निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूँ
कि वे दून विश्वविद्यालय के सष्टम दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। जय हिंद। जय हिंद। आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज दून यूनिवर्सिटी के इस उत्सव में, इस सेलिब्रेशन में, इस पर्व में हिस्सा लेने का प्रभु ने सौभाग्य दिया है। आज सचमुच एक अद्भुत है कि 42 मेडल में से हमारी बेटियों ने 34 मेडल जीते हैं। एक जोरदार ताली हो जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे परिवार की। आज मैं उन सभी विजेताओं को, दोज अचीवर्स जिन्होंने एक सक्सेस को आज टेस्ट किया है, ऑल 739 ऑफ यू, 484 अंडर ग्रेजुएट ही बोलते हैं, लेकिन देखने से तो अपर लगते हैं। 241 पोस्ट ग्रेजुएट और 14 पीएचडी। आप सब हमारे लिए हीरो हैं, आइकॉन हैं, आप लीडर हैं। आज से आप बिल्कुल बदल गए हैं। आपने एक नए जीवन में कदम डाला है। जो पूरे परिवार ने एक लक्ष्य बनाया है 2047 का, वो इस युवा पीढ़ी के ऊपर में ही बनाया है। और आज सचमुच जब 42 मेडल्स दे रहे थे तो एक अलग ही वाइब्रेशन आ रही थी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस था आप सब में। आई एम डेफिनेट अबाउट इट। जैसे इंग्लिश में कहते हैं, सक्सेस ब्रीड सक्सेस। और ये बात पक्की है कि सक्सेस ऑफन कम्स टू दोज हु डेयर एंड एक्ट, इट सेल्डम गोज टू टिमिड। तो आपने डेयर किया, आपने एक्ट किया, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शाबाशी। आज इस परिवार के अंदर में पेरेंट्स बहुत खुश हैं। मैं पूछ रहा था कुछ एक विजेताओं से कि आपके पेरेंट्स आए हैं, तो वो एक्साइटमेंट वन कुड सी इन द पेरेंट्स। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि जब से बच्चे का जन्म हुआ है तभी से दिल में और प्रभु के साथ में सदा ही ये प्रेयर थी कि प्रभु वो दिन दिखाना कि हमारे बच्चे को सफलता मिले और अपने राष्ट्र, समाज और पूरे परिवार के कुछ अलग स्पेक्टेकुलर सक्सेस करे। आज वो दिन आया है। आपकी पूरे फैकल्टी, पूरा जो भी लीडरशिप है यूनिवर्सिटी, आई कैन सी अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ कॉन्फिडेंस इन देम। एक अलग एक अचीवमेंट है कि हमारे स्टूडेंट्स आज इस सक्सेस के साथ में पूरी दुनिया में अगला कदम रखने वाले हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सबसे ज्यादा खुशी होगी आपके दोस्तों को, क्योंकि उन्होंने जो आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, ये आज जो आपको सक्सेस मिली है, जो उसी का कारण है कि आपने संगत, आपके दोस्त अच्छे थे। आई थिंक ये सबसे बड़ा लेसन है आज जिंदगी का। मैंने कहा कि आपके दोस्त अच्छे थे, तो बीच में एक बोल रहा, हाँ सचमुच अच्छा था। सबसे बड़ा सबक यही है कि आपने जीवन में संगत क्या रखनी है। अगर संगत आपकी पॉजिटिव, क्रिएटिव और डायनेमिक लोगों के साथ में होगी तो इसी प्रकार सक्सेस मिलती रहेगी। ये आज का सबसे बड़ा सबक है।
मैं आपके इस नई जीवन यात्रा के इस क्षण पर वाहिगुरु को, प्रभु को, शिव जी को, हर एक देवी देवताओं को, हमारी तो देवभूमि है, कितने देवी देवता हैं, सबको मैं वंदना, पूजा, प्रेयर करता हूँ, अरदास करता हूँ कि आपको इसी प्रकार जीवन में सफलताएं ही मिलती रहें। आज हमारे ये जो कॉन्वोकेशन है अपने आप में बहुत अलग है, क्योंकि आज जो हमारे साथ में प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन जी हैं, एक तो उनके नाम के अंदर में भी हर एक भगवान का नाम है। गणेश जी भी हैं, राम जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, और ऊपर से इनकी आंखें भी विवेकानंद जैसी लग रही हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट जिसमें इन्होंने माहिरता हासिल की है, एक सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल की है, वो अपने आप से सबसे अलग है। इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, लीडरशिप उठाई है, जिम्मेवारी, टास्क अपने ऊपर में लिया है, भारत जन एआई। ये जो भारत जन है, ये शब्द अपने आप में इतना पावरफुल है। जिस चीज में भारत जुड़ जाता है वो अपने आप से एक अलग ही सतह पे चले जाता है। मैंने तो सुना जोर से ताली मारी है, मारनी है तो। पहले कभी कभी लगता था अमेरिका के अंदर में जनरल मोटर्स है, जनरल इंजीनियर है, तो दिल में आता था, क्योंकि मैं भी जनरल हूं, तो भारत में कंपनियों के नाम में जन क्यों नहीं है, जनरल क्यों नहीं है? तो ये जो भारत जन लगाया है, ये ऐसा जनरेटिव वाला जनरल है जो पूरी स्थिति को चेंज कर देगा। ये 21st सेंचुरी का जो एक चैलेंज है, वो भारत में एक अवसर की तरह हमको मिलाएगा। जब मैं इनसे ब्रीफिंग ले रहा था तो मुझे ऐसा लगा, इनके अंदर में, इनकी पर्सनालिटी, मुझे ऐसा लगा कि जो एक शिव जी का त्रिशूल होता है, जिसके अंदर एक तरफ भारत की सभ्यता, संस्कृति, विद्या, ज्ञान, रियलाइजेशन, वेद, पुराण, उपनिषद, और दूसरी तरफ इस अवसर का, इस क्षण का, इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस मॉडर्नाइजेशन का, एआई, टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस, साइबर, नैनो, रेयर अर्थ मटेरियल, ये दोनों ही इकट्ठे मिल रहे हैं। और इनका जो मिलन है, ये भारत में एक ऐसी क्रांति लाने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है ये जो एआई है ना, ये भारत के परिवार का ही बच्चा है, क्योंकि संस्कृत और कंप्यूटर भाषा में कोई फर्क नहीं है। इसलिए लगता है कंप्यूटर की भाषा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हर भारतीय के डीएनए से मेल रखता है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि प्लीज ओन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आया है। ये जोर से ताली मारिए। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हमको विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आया है। मुझे बहुत खुशी है कि प्रोफेसर साहब ने इतना सुंदर कहा। उन्होंने कहा कि सोवरेनिटी का शब्द इस्तेमाल किया टेक्नोलॉजी और एआई के लिए। मैं तो पूरा जीवन एक सैनिक की भूमिका के अंदर में 40 साल भारतीय सेना की सेवा की है। वो शब्द सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए पूरा जीवन लड़े हैं। ये जो सोवरेनिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, हमको समझना पड़ेगा ये सोवरेनिटी क्या चीज है। स्वयंभू आपको क्लेम करना पड़ेगा कि ये सोवरेनिटी कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी और एआई क्या है। आज ये टेक्नोलॉजी, एआई, ये सब जितनी भी टेक्नोलॉजी है, दिस हैज बिकम एलिमेंट ऑफ पावर, दिस हैज बिकम एलिमेंट ऑफ वॉर। तो हमारे जो योद्धा आज
यहां से पास आउट हो रहे हैं, जिनको डिग्री मिली है, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस चैलेंज को, चुनौती को समझिए, क्योंकि आपके बलबूते के ऊपर में आप पर विश्वास है। इसलिए ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर में ये जो एआई और टेक्नोलॉजी है, और ईच वन ऑफ यू, हम पूरा परिवार इस टेक्नोलॉजी का सोल्जर है, योद्धा है, वॉरियर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे राष्ट्र को आज क्या चाहिए। और ये जो एआई है ना, ये पूरे स्पेक्ट्रम को चेंज कर देगा। हेल्थ, एजुकेशन, मनी, हर एक चीज को चेंज करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, आज ये प्रभु का ही खेल है, ये ब्रह्मांड का खेल है, कि गणेश जी खुद यहां आए हैं हमको बताने के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही, इंडिजीनियस, आत्मनिर्भरता। हमको वो इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। आज जितने भी हमारे इस पल से जो लीडर हैं, जिनको डिग्रियां प्राप्त हुई हैं, ईच वन ऑफ यू हैज गॉट टू बिकम अ जॉब क्रिएटर। यू गॉट टू डू ए स्टार्टअप, यू गॉट टू बी एंटरप्रेन्योर। आपको 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से भारत को इंडिजीनियस, भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग और दिशा में ले जाएं। इन्होंने एक बहुत सुंदर बात की कि इनका जितनी भी फिलॉसफी है, जितना भी कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी, डिजाइन है भारत जन एआई का, वो समन्वय के ऊपर में निर्धारित है, भारत की ही भाषाओं के ऊपर में आधारित है। अगर आप कंप्यूटर से एक सवाल करेंगे कि आपको कौन सी भाषा सबसे अच्छी लगती है, तो कंप्यूटर बोलेगा मुझे सबसे अच्छी भाषा संस्कृत लगती है, क्योंकि संस्कृत तो सांसों का कृत है और कंप्यूटर को यही डांस, यही कृत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो प्रोफेसर गणेश जी ने बताया, उससे एक अलग आत्मविश्वास हुआ है, एक अलग कॉन्फिडेंस आया है कि आने वाला युग भारत का ही युग होगा। एक बात और बहुत सुंदर इन्होंने कही कि हमको कंज्यूमर नहीं बनना है, हमको प्रोड्यूसर बनना है, हमको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। पूरा विश्व हमको प्रोड्यूसर की तरह देखता है। हमको लोकल से ग्लोबल तक जितनी भी कंज्यूमरिज्म डिमांड है, उसका वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब आपके सामने में बोल रहा हूं क्योंकि मुझे इस चीज का विश्वास है कि जो दून यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट निकलता है, ही इज द वन हु इज रेडी टू डिलीवर टू द नेशन, सोसाइटी एंड पीपल आउटसाइड हियर आफ्टर। मैं सच कहूं तो आज जब पहला कदम मैंने यूनिवर्सिटी में रखा, तो सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर था। लेकिन वो गार्ड ऑफ ऑनर पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग था। हमारी बेटियों ने वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उनकी वर्ड ऑफ कमांड, उनका डिसिप्लिन, उनकी टर्नआउट, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्कुल अलग। मुझे याद है जब कोविड हुआ था, उस वक्त में दून यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के ऊपर आधारित पूरा मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी का किया था। जोर से ताली हो जाए। मुझे बहुत खुशी है, दून यूनिवर्सिटी रिसर्च के ऊपर में भरोसा करती है। दून यूनिवर्सिटी एम्प्लेसमेंट के ऊपर में कहां जाएंगे स्टूडेंट, दे शुड बी रेडी फॉर द इंडस्ट्री, दे शुड बी रेडी फॉर द फ्यूचर। उनके पर्स में पैसे कमाने की काबिलियत होनी चाहिए। दे शुड बी रेडी फॉर द बिजनेस, दे शुड बी रेडी फॉर द एंटायर सोसाइटी। और ये जो आपकी सोच है, ये बहुत सुंदर सोच है। आपने इंडस्ट्री के साथ में एमओयू किए, आपने रिसर्च के साथ में नेशनल लेवल के ऊपर में एमओयू किया है। ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि भारत अगर आगे बढ़ेगा तो वो रिसर्च और विद्या और ज्ञान के ऊपर ही बढ़ेगा।
इसलिए रिसर्च सेंट्रिक, रिसर्च ड्रिवन जो एनवायरनमेंट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक सिस्टम शुरू किया है जो अपने आप में बिल्कुल अलग है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस एक जर्मनी से आए, वो तो देखने वो जर्मनी वाला था, लेकिन जब उसके दाढ़ी दूढ़ी भी थी थोड़ी सी, मुझे तो वो सरदार ही लग रहा था। लेकिन उसने इतना सुंदर यहाँ पर एक डिपार्टमेंट को एक पहल की, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर हमारे अलुमनी को उनको सम्मानित किया है। और यहाँ के जो अलुमनी हैं वो पूरे भारत में जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है उनको अपने परिवार अल्मा मेटर, अपना दून यूनिवर्सिटी के साथ में बहुत गहरा प्यार है। आज आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि आज हमने हमारे परिवार के 2 ऐसे सदस्यों को हमने सम्मानित किया है जिनके ऊपर में हमको भरोसा है कि आने वाले टाइम के ऊपर में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़े लीडर बनेंगे। उन दोनों के लिए क्लैप हो जाए बहुत जोर। आज वाइस चांसलर साहबा ने बहुत सुंदर तरीके से यूनिवर्सिटी की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी जो रिसर्च है, आपकी जो पब्लिकेशंस हैं, जो किताबें पब्लिश की हैं, जो साइटेशन आपका 97% है, दैट इज रियली कमेंडेबल। मेरी हर एक स्टूडेंट से आत्मा से एक रिक्वेस्ट है। पहला कि आप अपने जीवन में एक पैशन, एक एक्सपर्टीज, एक स्पेशलाइजेशन, एक सुपर स्पेशलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। सिर्फ लाइन ऐसे ही चलती रहेगी उसका कोई मतलब नहीं है। आप जेनरिक रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आपका जीवन में जो एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन का ग्राफ है, दैट शुड कीप गोइंग ऑन। आई थिंक विदाउट पैशन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, एंड विदाउट स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलाइजेशन यू कांट बी ए लीडर। अगर आज प्रोफेसर गणेश जी यहां आए हैं इसलिए कि ही इज अ सुपर स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्लीज लर्न दिस लेसन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि सपने देखिए, खुली आंखों से सपने देखिए, अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड सपने देखिए। यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनीबॉडी कि वो क्या कहेगा आपके सपनों के बारे में। जब तक आपको अपने अंदर में विश्वास है, आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं, सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, क्योंकि भारत का वो समय आ गया है जब हम बड़े बड़े सपनों को संकल्प के द्वार से सिद्धि तक ले जा सकते हैं। ये सपने आपको ही देखने पड़ेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मिशन बनाने के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है, नथिंग विल हैपन इन लाइफ विदाउट हार्ड वर्क। जब तक आप एक्स्ट्रा 1 आवर नहीं करेंगे ना, आप लीडर नहीं बन सकते हैं। जब आपके साथी जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं वो थक के सो जाते हैं, उस वक्त में आपका एक्स्ट्रा 1 आवर विल मेक यू लीडर। आपका अपने ऊपर में कंट्रोल क्या है? जैसे शिव जी कहते हैं 3 चीज। आपका सेल्फ कंट्रोल क्या है? अपने आप से पूछिए। आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? आपकी विल पावर क्या है? आपकी इच्छा शक्ति क्या है? अपने आप से सवाल कीजिए। यह आदत डालिए अपने आप से सवाल करने की, जिज्ञासा की। ये प्रॉम्प्ट आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, ये सब जितने भी हैं, वो आपका प्रॉम्प्ट की क्वालिटी क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द मदर ऑफ विजडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर कहना चाहता हूं, संगत ठीक रखिए,
अगर संगत आप सिगरेट पीने वाले की रखेंगे, वो अपना फेफड़ा तो खराब कर रहा है, आपका भी खराब कर देगा। अगर संगत आप पीने वाले की, शराब पीने वाले की कर रहे हैं, वो आप तो खराब हो रहा है, आपको भी ले डूबेगा सनम। अगर वो ड्रग खाता है तो ना जाने कितनी बार शुरू में वो आपको फ्री ड्रग पक्का दे देगा। आपने तो 3 इडियट वाला वो पिक्चर देखी थी, फ्री 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 वाली। अपनी संगत ठीक रखिए। नशा करना ही है तो प्रभु का नशा कीजिए। नशा करना है तो जो सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, नाम खमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। भगवान का नाम खुमार की तरह आपके आत्मा में, आपके मस्तिष्क में। आपने तो देखा है कि मीरा जी को क्या मस्ती थी, क्या ड्रग खाई थी। मीरा हो गई मगन, लागी ऐसी लगन। अगर लगन नहीं है तो यू नो द चैलेंज। अभी रियलिटी जो है, अभी जो सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा रियलिटी है 21st सेंचुरी। टेक इट फेस ऑन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी के प्रांगण से कहा 5 नवंबर 2021, मैं उस क्षण में उनके साथ में था। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक। जोर से ताली बजाइए। एडीसी साहब ने 2 वार्निंग दे दिया टाइम का, लेकिन भारत की आत्मा कह रही है कि लेट्स ऑल प्रिपेयर फॉर 21st सेंचुरी। ये क्षण ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के हैं, ये क्षण बदलाव के हैं। और आज हमें आने वाले समय के लिए रोबोट क्या है, ड्रोन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ऑटोनोमस क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको अपनी सोच, विचार और धारणा, वी गॉट टू बी कंट्रोलिंग इट। लाइफ इज ऑल अबाउट योर थॉट्स, योर थिंकिंग एंड योर परसेप्शन। एक इंसान और दूसरे इंसान में यही फर्क है कि वो सोचता कैसे है, उसके विचार क्या हैं, उसकी धारणा क्या है। और आप सबको देखकर लगता है कि आप इस 21st सेंचुरी के लिए एब्सोल्युटली रेडी हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शिक्षा है, आप शिक्षा के मंदिर में हैं। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो नैतिक मूल्यों की कसौटी पर खरा उतरे। यू मे बिकम एनीथिंग, बट इफ यू नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपके अंदर में वो साधारणता, वो मासूमियत, वो करुणा, वो नम्रता नहीं है, आप कुछ भी बन जाइए, बट डोंट लीव दैट रूट ऑफ कैरेक्टर। ये बात पक्की है कि एक स्वस्थ, नैतिक और चारित्रिक रूप से मजबूत युवा ही देश की असली ताकत बनता है। दैट विल डिफाइन योर डिपेंडेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। अभी आप अलग अलग क्षेत्र में जाएंगे, रिमेंबर योर रेपुटेशन का मीटर विल स्टार्ट देयर आफ्टर। मेरी हर एक युवा से ये आह्वान है कि आप स्वदेशी नवाचार से प्रेरणा लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। We can't be dependent on others.
आज आप सभी एक नए जीवन की दहलीज पर खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में 3 मूल्य मंत्रों को सदैव स्मरण रखें। पहला, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धरोहर और जड़, और भारतवर्ष की तो धरोहर और जड़ सबसे मजबूत है। अपनी भाषा, संस्कृति और मातृभूमि उत्तराखंड से जुड़े रहें। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। जो जीवन का आनंद है वो औरों के लिए क्या करें। सबसे ज्यादा जो आनंद है वो दूसरों की सेवा और मदद करने के अंदर में है। गुरु नानक देव जी ने इतना सुंदर कहा कि सब कुछ तेरा सर्बत दा भला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय महादेव महाकाल है। और उस महादेव महाकाल के आदेश से मैं उस पैराग्राफ में आ गया हूं जहां लिखा है अंत में, इन द लास्ट। मैं एक बार पुनः दून विश्वविद्यालय के पूरे परिवार, विशेष रूप से आज जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जहां भी जाएंगे, जिस भी क्षेत्र में कार्य करेंगे, आप इस विश्वविद्यालय और उत्तराखंड राज्य के सच्चे राजदूत, एम्बेसडर, इसका प्रचार प्रसार बनकर भारत का मान बढ़ाएंगे। मैं श्री दुर्गेश डिमरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने इस कॉन्वोकेशन का बहुत सुंदर आयोजन किया है। मैं एक बार फिर पूरे परिवार की तरफ से प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो सोच, विचार, धारणा और जो आपके जीवन का लक्ष्य हमसे साझा किया है, जो हमको इंस्पायर किया है, और जो आप पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष, पूरी मानवता की तरफ से, पूरे समाज और परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं दैट ही इज ऑलवेज वर्किंग डिलिजेंटली। बहुत ही सुंदर प्लानिंग, बहुत ही सुंदर सोच और बहुत बारीकी से कार्य करते हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर में स्पेशली टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य किया, लेट्स क्लैप फॉर हिम। ये वाला क्लैप जोर से होना चाहिए। जो क्लैप सामने में होता है वो नॉर्मल है, लेकिन जो किसी की पीठ पे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक जोर से क्लैप हो जाए दोबारा से। और सबसे पूरे परिवार की तरफ से एक ऐसी रेखा, एक ऐसी सुरेखा मैं एक बार सुरेखा जी के बड़े भाई साहब से मिला बद्रीनाथ में।
और ही वॉज सो एक्साइटेड, जैसे होता है ना कि बड़े भाई का अपने जो छोटी बहन होती है वो बेटी की तरह होती है, तो इतने एक्साइटमेंट से मेरे को बता रहे थे कि इनके जीवन की जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, जो सिंसियरिटी है, जो विद्या ज्ञान के साथ लग रहा है, वो बिल्कुल ही अलग था। मुझे कह रहे थे जब छोटी सी थी तभी से फ्रॉक डाल के डिबेट्स में हिस्सा लेने जाती थी, लेकिन आज जो उन्होंने अपने पूरे जीवन की मेहनत से आज जो दून यूनिवर्सिटी को एक अलग ही रूप दिया है, फ्रॉम द एंटायर उत्तराखंड, फ्रॉम द एंटायर यूनिवर्सिटी, बिग थैंक्स टू यू मैडम। आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हमारे परिवार के, जिनके ऊपर में सबसे ज्यादा हमको मान सम्मान है, कल्याण सिंह रावत जी, एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। बसंती बिष्ट जी, डॉक्टर संजय जी, ये तीनों हमारे पद्मश्री हैं। और जब तीन आते हैं ना, ऐसा लगता है कि शिव जी ने इनको भेजा है एक त्रिशूल के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हम सबका हौसला बढ़ाई की है। मैं आज के दिन में पूरी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, ईसी, एजुकेशन काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपका जो योगदान है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा है। मैं पंडित अंतवाल जी को देखकर इतना अच्छा लग रहा है, एक बार खड़े हो जाओ, ताली हो जाए जोर से। जोर से ताली बजाइए। ये आपका, ये हम सब के भविष्य के लिए जो इनका तप तपस्या है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में ये क्षण दिसंबर, ये क्षण 2025, first quarter of 21st century is over, and in next very little number of days we are stepping into 2026, एक नया challenge, and no challenge is achievable until unless you make your mission, और संकल्प के साथ उसको नहीं मिलाते हैं। मेरी आप सबको आने वाले नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार को, and my prayers to Almighty to bless Uttarakhand, to bless Doon University, to bless each one of you for bigger achievements in 2026. ये जो 2026 है ना, जो हमारी मैथमेटिकल डिपार्टमेंट है, ये कहती है 2 + 0 + 2 + 6, ये पूरा 1 0 10 बनता है, और 1 और 0 1 बनता है। जो 1 है वो ब्रह्मांड का नंबर है, और मुझे लगता है कि ये 2026 हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, भारत के लिए, उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही सुंदर वर्ष होने वाला है। पंडित जी ठीक बोल रहा हूं मैं? हाँ, ठीक बोल रहा हूं? इन्होंने भी अप्रूव कर दिया है कि ठीक बोल रहा हूं। अंत में आप सबको प्रणाम, नमस्कार, और खड़े हो जाइए। हाँ जी जी, अच्छा से जय हिंद करेंगे। गला साफ कीजिए एक बार। पूरे रेडी है? पीछे वाले रेडी हैं? इधर वाले? और पूरे पेरेंट्स रेडी हैं? फैकल्टी रेडी है? यस सर। ओके। ये सुरेखा जी की ये हिल जाना चाहिए सब। जय हिंद।
धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपके ओजपूर्ण संबोधन के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए विश्वविद्यालय परिवार ऋणी है। हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं माननीय कुलपति महोदया से निवेदन करता हूं कि माननीय कुलाधिपति महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। माननीय कुलपति महोदया, माननीय कुलाधिपति महोदय को अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह भेंट कर विश्वविद्यालय परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित कर रही हैं। बहुत बहुत आभार माननीय कुलाधिपति महोदय, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। पुनः माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि आज के मुख्य अतिथि भारत जैन एआई के विशेषज्ञ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंसर में से एक प्रोफेसर डॉक्टर गणेश रामकृष्णन जी को विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रोफेसर डॉक्टर गणेश रामकृष्णन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदया। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव दुर्गेश डिमरी जी को आमंत्रित करता हूं। मैं दून विश्वविद्यालय के 6म दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सर्वप्रथम दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का कार्यक्रम में पधारने एवं विद्यार्थियों को अपने प्रेरणादायक शब्दों एवं आशीर्वचन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन IIT मुंबई को आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने एवं विद्यार्थियों को अपने बहुमूल्य दीक्षांत संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारने एवं कार्यक्रम संबोधन के लिए प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह राव जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं कार्यक्रम में पधारने के लिए विश्वविद्यालय सभा, कार्य परिषद, विद्या परिषद के समस्त सम्मानित सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में पधारने के लिए उपस्थित माननीय विधायक गणों, कुलपति गणों एवं विशिष्ट महानुभावों, विशिष्ट शिक्षाविदों, स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, PhD डिग्री प्राप्त करने वाले शोध छात्र छात्राओं, विशिष्ट अलुमनाई, स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं, डॉक्टर गजेंद्र सिंह ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से सम्मानित छात्रों, चांसलर फ्यूचर AI लीडर अवार्ड से सम्मानित छात्रों व नागरिक कर्तव्य से सम्मानित छात्र तथा समस्त अभिभावकों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए आए समस्त मीडिया कर्मियों तथा कार्यक्रम को लाइव दिखाने वाली स्कूल ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन की टीम को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। अंत में माननीय कुलपति महोदया के निर्देशन में दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु बनाई गई विभिन्न समितियों के सदस्यों, विश्वविद्यालय के समस्त डीन, वित्त नियंत्रक, विभागाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, शिक्षकगण, कर्मचारियों, NCC कैडेट्स, छात्र परिषद, सुरक्षा कर्मियों एवं सफाई कर्मियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कुल सचिव महोदय। माननीय कुलपति महोदया से निवेदन है कि माननीय कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय के 6म दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा हेतु निवेदन करने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करती हूँ कि विश्वविद्यालय के 6म दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दून विश्वविद्यालय के 6म दीक्षांत समारोह के समापन की विधिवत घोषणा करता हूँ। राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि शोभा यात्रा माननीय कुलाधिपति महोदय की अगुवाई में सभा कक्ष से प्रस्थान न कर जाए। सभी अतिथियों से, पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और तब तक खड़े रहें जब तक कि शोभा यात्रा प्रस्थान न कर जाए। राष्ट्रगान। गण गण मन अधिनायक
आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर गणेश रामकृष्णन जी, माननीय कुलपति महोदय, विश्वविद्यालय कोर्ट के माननीय सदस्य श्रीमान अनिल रतूड़ी जी, प्रोफेसर जे.पी. पचौरी साहब, प्रोफेसर वाई.एस. रावत जी, प्रोफेसर आर.डी. शर्मा साहब, विश्वविद्यालय ओम्बड्सपर्सन प्रोफेसर O.P.S. नेगी, विश्वविद्यालय विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, विषय विशेषज्ञ, होले होले कदमों से विश्वविद्यालय शैक्षणिक शोभा यात्रा सभागार से प्रस्थान कर रही है। सबसे आगे माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन जी, माननीय कुलपति महोदय, माननीय श्रीमान अनिल रतूड़ी जी, प्रोफेसर जे.बी. पचौरी साहब, प्रोफेसर वाई.एस. रावत जी, प्रोफेसर आर.डी. शर्मा साहब, प्रोफेसर O.P.S. नेगी जी, विश्वविद्यालय विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, छात्र परिषद के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष और महामंत्री और अंत में कुल सचिव, आप सभी दोपहर के भोज के लिए आमंत्रित हैं। हमारे सभी शिक्षक साथी इस तरफ का दरवाजा खोल दीजिए, इधर से चले जाएंगे। और हमारे एलुमनाई, हमारे विद्यार्थी ग्रुप फोटोग्राफी के लिए आ जाएं स्टेज पर। ग्रुप फोटोग्राफी के लिए सब लोग स्टेज पे आ जाएं। और गोल्ड मेडलिस्ट के जो बॉक्स हैं, सभी मेडलिस्ट, आपके बॉक्स यहाँ हैं। स्टेज से प्रोफेसर रीना मैडम से ले लीजिए, यहाँ से अपने बॉक्स एकत्र कर लें। सभी मेडलिस्ट अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर फोटो खिंचवा लें। उसके पश्चात दोपहर का भोजन आप ग्रहण करें। 7 स्टार भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन के पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उस तरफ से जाएं सब लोग, ये दरवाजा बंद कर दीजिए, इस तरफ से जाएं। यहाँ से VIP मूवमेंट, इधर से चलें सब लोग, सभी से निवेदन है इस तरफ से। प्रोफेसर डंग साहब, माननीय अध्यक्ष जी को लेके चले, पद्मश्री महोदय भी सब इधर से, दीदी इधर से, सब लोग इधर से चलेंगे उधर, क्योंकि आवागमन अवरुद्ध होगा। सभी मेडलिस्ट, आपके बॉक्स यहाँ हैं। स्टेज से प्रोफेसर रीना मैडम से ले लीजिए, यहाँ से अपने बॉक्स एकत्र कर लें। सभी मेडलिस्ट अपने पेरेंट्स के साथ स्टेज पर फोटो खिंचवा लें। उसके पश्चात दोपहर का भोजन आप ग्रहण करें। 7 स्टार भोजन की व्यवस्था की गई है। भोजन के पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उस तरफ से जाएं सब लोग, ये दरवाजा बंद कर दीजिए, इस तरफ से जाएं। यहाँ से VIP मूवमेंट, इधर से चलें सब लोग, सभी से निवेदन है इस तरफ से। प्रोफेसर डंग साहब, माननीय अध्यक्ष जी को लेके चले, पद्मश्री महोदय भी सब इधर से, दीदी इधर से, सब लोग इधर से चलेंगे उधर, क्योंकि आवागमन अवरुद्ध होगा।